Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology, SMB Government PG College, Nathadwara. In the earlier videos, we have studied mitosis and meiosis. In this video, we will discuss the differences between mitosis and meiosis. Mitosis. Mitosis is the cell division in which the daughter cells contain the same number of chromosomes as the parent cell. It means the diploid cell divides and forms daughter cells which is also having diploid number of chromosomes. While meiosis is the cell division which changes the nature of cell, that is from diploid nature to haploid nature. माइटोसिस या समसूत्री विभाजन वो विभाजन है जिसमें एक मात्र कोशिका जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है वो विभाजित होने के पश्चात दो पुत्री कोशिकाओं का जो निर्माण करती है उनमें भी मात्र कोशिका के समान द्विगुणित क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र आते हैं। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन है जिसमें विभाजन के पश्चात कोशिका का प्रकार परिवर्तित हो जाता है। एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर के अगुणित पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। Mitosis occurs in somatic cells while meiosis occurs in reproductive cells. Mitosis कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है जबकि meiosis जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। In mitosis, one cell produces two daughter cells while in meiosis one cell produces four daughter cells. माइटोसिस के द्वारा एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है किंतु मियोसिस में एक मात्र कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइटोसिस is a single division and the entire process is completed in one sequence and it is also called as the equational division. जो माइटोसिस का विभाजन है वो एक ही प्रक्रिया में पूर्ण किया जाता है और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है। While the meiosis is a reduction division. The meiosis itself is divided into two stages, meiotic first division and meiotic second division. In the meiotic first division, the chromosome number becomes half, while in the second meiotic division, the chromosome number remains as such. अर्थात जो अर्धसूत्री विभाजन है या meiosis है ये दो प्रावस्थाओं में पूरा किया जाता है। इसके दो चरण हैं, प्रथम मियोसिस और द्वितीय मियोसिस। जो प्रथम प्रावस्था है मियोसिस की उस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। The only one division is found per cycle in case of the mitosis, while two divisions per cycle are found in meiosis. Interphase stage is comparatively short in case of the mitosis, while the interphase stage is very long in case of the meiosis. During interphase stage of the mitosis, the size of the nucleus and the cell increases, but the size of the nucleus increases less than that is in the meiosis. Here in meiosis, during this phase, the size of the nucleus and the cells increases, the size of the nucleus increases sufficiently. जो अंतर अवस्था या इंटरफेस अवस्था है वो माइटोसिस के केस में बहुत कम ड्यूरेशन का होता है जबकि मियोसिस में ये प्रावस्था काफी लंबी दिखाई देती है। The chromosomes fail to synapse in case of mitosis and no chiasmata formation occurs in mitosis. In meiosis, chromosomes synapse and formation of chiasmata takes place. समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में गुणसूत्र
सिनेप्सिस नहीं बनाते हैं और इसी कारण से उनके अंदर चायस्मिटा फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्र सिनेप्सिस बनाते हैं और इनके अंदर चायस्मिटा फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। The genetic exchange between homologous chromosomes does not occur in case of mitosis, while genetic change through chiasmata occurs between homologous chromosomes. माइटोसिस में क्योंकि चायस्मिटा फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान नहीं होता है, किंतु मियोसिस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य में आसानी से होता है, क्योंकि यहाँ पर चायस्मिटा फॉर्मेशन होता है और जहां चायस्मिटा फॉर्मेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, वहां पर ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। The genetic contents of the daughter cells remains same as that of the mother cell in case of the mitosis, while the genetic contents of the daughter cells becomes different from the mother cells. माइटोसिस के द्वारा जब विभाजन होता है तो मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका दोनों का जेनेटिक कंटेंट समान होता है, किंतु मियोसिस में मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका के जेनेटिक कंटेंट्स में अंतर आने की संभावना होती है। In mitosis, chromosome number of daughter cells remains the same as that of the mother cell, while in case of the meiosis, the chromosome number of the daughter cell reduced to the half of the number of the chromosomes which are present in the mother cell. माइटोसिस में कोशिका विभाजन के पश्चात मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, किंतु मियोसिस में मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या का अगर हम कंपैरिजन करें तो पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका से आधी संख्या में गुणसूत्र पहुंचते हैं। Daughter cells are capable of undergoing additional meiotic division in case of the mitosis, while the daughter cells are not capable of undergoing another meiotic division, although they may undergo mitotic division. माइटोसिस के द्वारा जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, वे पुत्री कोशिकाएं अगले समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन के लिए तैयार रहती हैं या उनके अंदर माइटोसिस पुनः हो सकता है, किंतु मियोसिस में जो प्रथम मियोसिस के पश्चात पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, वे सीधे दोबारा से मियोसिस में नहीं जा सकती, क्योंकि मियोसिस दो विभागों में बंट करके होता है, जिसमें पहले मियोसिस अवस्था में रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके पश्चात जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। तो पहले कोशिका रिडक्शन डिवीजन करती है, उसके पश्चात माइटोटिक या समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, अर्थात पुत्री कोशिका सीधे एक मियोसिस के पश्चात दूसरे मियोटिक डिवीजन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकती हैं। माइटोसिस स्टार्ट एट द ज़ायगोट स्टेज एंड इट कंटिन्यूज थ्रू the life of the organism. Meiosis occurs only after puberty in higher organisms, but occurs in zygote of algae and fungi. जो माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसका प्रारंभ ज़ायगोट प्रावस्था के साथ ही हो जाता है और ये किसी भी जीव के पूरे जीवन चक्र चलने तक निरंतर बना रहता है या निरंतर कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जबकि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन केवल प्यूबर्टी अवस्था या वयस्क होने के पश्चात ही यह प्रारंभ होता है और उसके बाद कुछ जैसे कि एल्गी और फंजाई की हम बात करें तो इनमें ज़ायगोट में भी होता है। माइटोसिस और मियोसिस की अगर हम हर प्रावस्था के अनुसार बात करें तो अंतरावस्था हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस में बहुत
छोटे समय के लिए होती है, जबकि मियोसिस में ये काफी लंबे समय के लिए होती है। माइटोसिस स्वयं 4 चरणों में विभाजित होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जबकि मियोसिस पहले 2 भागों में विभाजित होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट है वो उसकी भी वापस से 4 प्रावस्थाएं हैं, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था फिर कई भागों में विभाजित होती है। माइटोसिस का जो प्रोफेज अवस्था है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, किंतु जो मियोसिस का प्रोफेज है वो बहुत लंबे समय तक होता है। और प्रोफेज फर्स्ट इसका जो है वो स्वयं 5 प्रावस्थाओं में विभाजित होता है, जिनके नाम हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में इस तरह का कोई सब डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य में पेयरिंग नहीं होती है, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य में पेयरिंग होती है। माइटोसिस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स do not twist around each other to form chiasmata, while in case of meiosis, non-sister chromatids coil around each other to form chiasmata. In mitosis, non-sister chromatids do not exchange their segments, while in case of the meiosis, non-sister chromatids exchange their segments. हमने पूर्व में भी पढ़ा कि जो माइटोसिस प्रावस्था है उस माइटोसिस विभाजन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में चाइस्मेटा फॉर्मेशन नहीं होता है और उनके बीच में क्रोमेटिड का आपस में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। जबकि मियोसिस के अंदर जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य में जेनेटिक मटेरियल में आपस में चाइस्मेटा जहां पर बनता है उस जगह पर जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान किया जाता है। माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में टर्मिनलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मियोसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया भी चलती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन प्रोफेज in case of the mitosis. Similarly, in meiosis also, the nuclear membrane disappears along with the nucleolus. The next stage of the cell division is metaphase. In mitosis, it also completes in single stage, while metaphase in meiosis occurs in 2 phases, metaphase first and metaphase second. In mitosis, chromatids arrange themselves at the equator to form equatorial plate. In metaphase first, the chromosomes arrange themselves to form equatorial plate in meiosis, and in metaphase second also the chromatids constitute the equatorial plate. माइटोसिस में मेटाफेज एक ही होता है, जबकि मियोसिस में मेटाफेज भी 2 फेजेस में पूरा होता है, मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड। माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमेटिड्स स्वयं को इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित करते हैं। मियोसिस में भी मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स स्वयं को इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित करते हैं, किंतु मेटाफेज सेकेंड में क्रोमेटिड्स इक्वेटोरियल प्लेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। माइटोसिस अवस्था में सेंट्रोमियर डिवाइड होकर के दोनों अपोजिट ध्रुवों की तरफ क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं, जबकि मियोसिस में सेंट्रोमियर्स का विभाजन नहीं होता है और पूरा के पूरा गुणसूत्र 2 अलग अलग ध्रुवों की ओर बढ़ता है। किंतु जब मेटाफेज सेकेंड होता है तो जैसे माइटोसिस में होती है प्रक्रिया, वैसे ही प्रक्रिया मेटाफेज
द्वितीय में पूरी की जाती है. So here we can say that in mitosis metaphase, the centromere divides to move towards opposite poles along the chromatids, while in case of the meiosis, the centromeres do not divide as such, and each chromosome as a whole move towards the poles. In mitosis, free ends of the chromatids face towards the pole, while the centromeres towards the equatorial plate. While in case of the meiosis, in first metaphase, the free ends of the chromosomes face towards equatorial plate, while the centromere towards the pole. In second metaphase of the meiosis, the chromatids behave as same as in the mitosis. माइटोसिस में जो क्रोमेटिड्स हैं, जब वो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो क्रोमेटिड्स के स्वतंत्र सिरे होते हैं वो ध्रुवों की तरफ और सेंट्रोमियर इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होती है. किंतु मियोसिस के प्रथम मेटाफेज में जो गुणसूत्रों के फ्री एंड्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होते हैं, जबकि सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ होती है. मेटाफेज द्वितीय में जैसे मियोसिस के मेटाफेज में होता है वैसे ही प्रावस्था मियोसिस के मेटाफेज सेकंड में देखने को मिलती है. जो थर्ड स्टेज है एनाफेज, in this third stage anaphase, during the anaphase of mitosis, the chromatids move towards the opposite poles, while in case of the meiosis, the anaphase first is the stage in which the homologous chromosomes move towards opposite poles, and in anaphase second, again the sister chromatids moves towards opposite poles. एनाफेज प्रावस्था में माइटोसिस में क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, जबकि मियोसिस के प्रथम एनाफेज में होमोलोगस गुणसूत्र पूरे के पूरे विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं और जो सेकेंड एनाफेज है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट ध्रुवों की ओर बढ़ने का काम करते हैं. The next stage is the telophase, in which it is necessary after every division and spindle fibers completely disappears in case of the telophase, and formation of two daughter cells after cytokinesis takes place, which are having the same number of the chromosomes as the mother cell. While in meiosis, the telophase is again divided into two parts, telophase first and telophase second. Sometimes telophase first may or may not occur or may be postponed to telophase 2, which is regular. Here also the spindle fibers are not disappeared during the first phase of the telophase, but in second phase of the telophase, the spindle fibers disappear. And after meiosis, one mother cell gives rise to 4 daughter cells after cytokinesis, and these 4 daughter cells are having the half of the number of the chromosomes as compared to the parent cell. So with this, we complete the differences between mitosis and meiosis.